Hello students, this is Amisha and in this video we'll discuss practice question paper for class 9 subject mathematics. So let's start with the first question. If sin A is equals to 3/5, find cos A and tan A. So this is a question from the topic trigonometry and it is easy to do these questions with the help of right angled triangle. So for solving this question, first of all we'll name the triangle ABC. ये vertex A हो जाएगा, ये B है और ये C है. This is right angled at B, so this will be 90 degree. And AC is the hypotenuse. Hypotenuse जो है 90 के opposite वाली side है, तो आपका hypotenuse हो जाएगा AC. And the remaining two sides will be perpendicular and base. Now if I talk about angle A, so this is the angle A और इसके जो opposite side है यानी कि this one, this will be the perpendicular और जिस पे ये lie करता है angle वो हो जाएगा base. We are given sin A equals to 3/5. sin A ratio होता है perpendicular to hypotenuse का, which is 3/5, तो that means perpendicular 3 और hypotenuse 5. Now in this right angle triangle we can apply the Pythagoras theorem and we can solve for calculating the third side of the triangle which is AB. और AB हमारे पास आ गया है 4 units. Now we have to find the value of cos A and tan A. cos A है हमारे पास रेशो बेस और हाइपोटेन्यूज का. बेस we have just calculated 4 and hypotenuse is 5, so it will be cos A will be 4/5. और tan A रेशो होता है परपेंडिकुलर टू बेस का, सो परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5, सो tan A will be 3/4. So moving on to the next question. Determine the value of k for which the given value is a solution of the equation given kx square plus 2x minus 3 equals to 0 and x is equals to 2. सो देखिए हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन गिवन है और उसका एक सॉल्यूशन गिवन है x इज इक्वल टू 2. अब x इक्वल टू सॉल्यूशन होने का मीनिंग ये है कि जब मैं इस इक्वेशन में x के प्लेस पे 2 सब्सटीट्यूट हम करेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई करने का मीन्स व्हेन आई विल पुट x इक्वल टू 2, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड की. सो वी हैव पुट x इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन and we have solved for the value of k. So from here the value of k has come out to be minus 1/4. Next question. Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. अब देखिए हमारे पास क्या है, दो क्यूब्स हैं और जब हम इसे ज्वाइन करते हैं एंड टू एंड तो हमारे पास एक क्यूबॉइड बनता है, रिजल्टिंग का क्यूबॉइड, जिसका सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है. तो क्यूब एक ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके जो है तीनों साइड्स दैट इज़ लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं. तो ऐसे दो क्यूब्स जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है उसे हमने कर दिया है ज्वाइन. लेट ये वो दो क्यूब्स हैं जिसे हमने ज्वाइन किया है, राइट. So if you will see, if I can calculate the side of this cube from the volume given. We know the formula for the volume of cube is side cube, so we can equate it with the given value to get the value of side, that is 4. So each side of this cube will be 4. And now when two cubes are joined, the length of the resulting cuboid. बट देखिए जैसे जो क्यूब है उसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, बट जो क्यूबॉइड है उसके तीनों साइड्स इक्वल नहीं है. ज्वाइन करने के बाद ये जो क्यूबॉइड हमारे पास मिलेगा हमें, उसकी जो लेंथ है दैट इज़ लेंथ, वो ट्वाइस यानी कि डबल हो जाएगी ऑफ द वन साइड ऑफ द क्यूब. दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ ऑल्सो 4. तो यानी कि जो लेंथ है वो हो जाएगी साइड प्लस साइड, 4 + 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. Now if I talk about the other sides of the cuboid, that is breadth, if I call this one as breadth, ये तो 4 ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा. और जो हाइट है वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगी. इफ़ आई कॉल दिस वन हाइट, तो ये भी चेंज नहीं हो रही है. तो दैट मीन्स क्यूबॉइड के जो डायमेंशंस हैं वो हमें मिल गए हैं. लेंथ 8 सेंटीमीटर,
breadth 4 centimeter and height 4 centimeter. Now we have to find the total surface area of the cuboid, the formula of which is 2 times LB plus BH plus HL. So we can put the values, respective values of LBH to finally calculate the value of total surface area, which has come out to be 160 centimeter square. Moving on to the next question. Find the zeros of the polynomials fx equal to 4 square root x square plus 5x minus 2 square root 3. Now we have to calculate the zeros of this polynomial. इस polynomial के zeros हमें find करने हैं. First of all तो zeros का क्या meaning है? Zeros का meaning students है कि जब मैं x की वो वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है जिसे जब मैं पुट करूँगी तो मेरी जो इक्वेशन है, इक्वेशन में x को जब मैं पुट करूँगी तो आंसर जो है रिज़ल्ट क्या होगा? ज़ीरो होगा. सो व्हाट आई सेड कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है x की वो वैल्यूज़, वैल्यू ऑफ x जिसे जब मैं इक्वेशन में पुट कर दूँगी, x के प्लेस पे सब्सटीट्यूट कर दूँगी तो मेरा रिज़ल्ट क्या होगा? ज़ीरो होगा. तो ज़ीरोज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम अपने गिवन इक्वेशन को ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं. तो ज़ीरो से इक्वेट अगर जब इफ़ आई सी दिस इक्वेशन इट इज़ सिंपली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं, राइट. तो ज़ीरोज़ को आप रूट्स भी बोल सकते हैं. ज़ीरोज़ को फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हम इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. हम क्या करते हैं, जो सेंट्रल टर्म है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, उसे हम ब्रेक करते हैं इन टू टर्म्स इन सच अ वे कि उसका जो सम है वो एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल आता है और उसका जो प्रोडक्ट है वो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, राइट. सो आई हैव डिवाइडेड 5x एज 8x माइनस 3x and the product of 2 will be 24, which is also the product of 4 root 3 and 2 root 3, right. Now अभी जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं 4 रूट 3 और 8, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 4 एंड अंदर बचेगा रूट 3x प्लस 2. सिमिलरली इन दो टर्म्स में से हमने रूट 3 कॉमन लिया है माइनस रूट 3, तो अंदर ब्रैकेट में रहेगा रूट 3x प्लस 2. नाउ अभी इन दो टर्म्स में से हमने कॉमन लिया है रूट 3x प्लस 2. यू कैन सी इन दोनों ही टर्म्स में रूट 3x प्लस 2 की टर्म आ रही है एंड इट कैन बी टेकन कॉमन. तो यहाँ से मेरे पास बचेगा 4x और यहाँ से माइनस स्क्वायर रूट 3. तो यानी कि मेरे पास स्क्वायर रूट 3x जो है आपके पास जो है स्क्वायर रूट 3x प्लस 2 और 4x माइनस स्क्वायर रूट 3 का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आ गया. अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अगर ज़ीरो है तो दैट मीन्स ये भी ज़ीरो हो सकता है और ये भी ज़ीरो हो सकता है, दोनों में से कोई भी ज़ीरो हो सकता है. सो इक्वेटिंग विद ज़ीरो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x. फर्स्ट टर्म से x की वैल्यू आई है माइनस 2 बाई स्क्वायर रूट 3 और सेकेंड टर्म से x की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 3 बाई 4. सो दीज टू वैल्यूज़ ऑफ x आर नथिंग बट द zeros of the polynomial. Moving on to the last question. What is the probability of an impossible event? So probability का meaning क्या है? Probability means chance. किसी भी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, कितनी संभावना है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी है. तो अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है दैट मीन्स वो कभी भी नहीं होगा, तो उसके होने के चांसेस क्या हैं? ज़ीरो हैं. सो वी कैन से द प्रोबेबिलिटी इज़ ज़ीरो. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस questions. Hope you have understood well. Thank you so much.